Hello and good morning to all my dear students. I welcome you in the class of accounts standard 11th. I hope you all are fine and safe at your home. Yes, we are going through with chapter number 4 of your part 2, that is bills of exchange is the name of the chapter. In our last two videos we have gone through with question number 1 and question number 2. In our today's e-class I am going to teach you question number 3 on page number 104. Before going to the practical question, let us go through with the third point, that is to endorse the bill in favor of our creditor. हम endorse कर रहे हैं हमारे creditor को हमारा bill receivable. This is the third point of disposal or uses of bills. So let us proceed. We are going through the topic disposal or uses of a bill. In that today we are going to see the third one, that is C, to endorse the bill before the maturity date. किसी और को बिल सौंप देना maturity date है उसके पहले. This is the image, my dear students, of your textbook. So please keep it open. Under the Indian Negotiable Instruments Act 1881, a bill of exchange is a negotiable instrument. It is a document which can be transferred very easily. A person holding the bill can endorse the bill receivable in favor of his debt. खुद को अगर पैसे भरने हैं, खुद का अगर कर्जा है और उसको वो कर्जे को पूरा करना है और सामने अगर उसके पास बिल्स रिसीवेबल है तो वो सेम बिल रिसीवेबल अपने कर्जे को पूरा करने के लिए वो किसी और को हैंडओवर कर सकता है. However, the consent of the creditor is necessary. Yes, उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि will you accept it or not. In order to transfer the bill, necessary details are written on the backside of the bill and signed. बिल के ओवरलीफ पे, बिल के पीछे साइड पे उसको नेसेसरी जो डिटेल्स होती हैं वो लिखनी पड़ती हैं और खुद को उसको सिग्नेचर करना होता है. ये प्रोसेस को कहा जाता है एंडोर्समेंट. When a bill is endorsed in a favor of creditor for the payment of a debt, the creditor becomes the holder of the bill. अब वो बिल रिसीवेबल किसके पास है? जिसको हमने एंडोर्स किया है, जो हमारा क्रेडिटर था. अब कौन लेने का हकदार है? अपन कि हमारा क्रेडिटर? हमारा creditor, and can collect the money on the maturity date of the bill. Let me put it into the illustration. मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे मिस्टर बी को. फाइन, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए हैं. कौन बिल रिसीवेबल बनाएगा? हु विल बी द ड्रॉवर? मिस्टर ए विल बी द ड्रॉवर. सो इफ मिस्टर ए इज ड्रॉइंग द बिल, then it will be bill receivable for Mr. A. पे किसको करना है? कौन पे करेगा? बी पे करेगा. किसको? मिस्टर ए को. नाउ मिस्टर ए को पे करने हैं मिस्टर सी को. फाइन, समझ आ रहा है? मिस्टर ए को पैसा देना है सी को. नाउ मिस्टर ए के पास बी का बिल रिसीवेबल है. उसके पीछे साइड ओवरलीफ पे वो नेसेसरी डिटेल्स लिख के वो बिल रिसीवेबल किसको दे देगा? मिस्टर सी को. नाउ मिस्टर ए ने अपना क्रेडिट ऐसे करके पूरा कर लिया. फाइन. नाउ मिस्टर बी वॉज सपोज टू पे टू मिस्टर ए. नाउ इंस्टेड ऑफ पेइंग टू मिस्टर ए, ही इज नाउ गोइंग टू पे टू मिस्टर सी. फाइन. मिस्टर सी को जितना पैसा ए से मिलने वाला था वही सेम पैसा मिस्टर बी से मिलेगा. उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दिस इज एंडोर्समेंट. सो हम कहेंगे ए ने एंडोर्स कर दिया सी को. फाइन. इज दिस क्लियर? इफ इट इज नॉट, देन in our practical question we will study it very nicely. Okay, so let us begin with its practical question. Before proceeding to the practical question, let us first go through with the journal entries that will help you a lot in solving the practical question. Now these are the journal entries in relation to disposal or uses of the bill
under the condition that bill has been endorsed. Now what is written over here? Suppose Nupur traders endorsed this bill in favor of Pandya brothers. Pandya brothers को एंडोर्समेंट हो रहा है. नूपुर की बुक्स में हम एंट्रीज लिख रहे हैं. आज दिन तक पंड्या ब्रदर्स हमारे क्रेडिटर्स थे जिनको हमें पे करना था. आज हम उनको पे कर रहे हैं. इसके लिए पंड्या ब्रदर्स नाउ दे आर नो मोर आवर क्रेडिटर्स. इसके लिए हम उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. और सामने हमारा जो आज दिन तक बिल रिसीवेबल डेबिट था बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ आवर असेट. नाउ ये बिल रिसीवेबल हमने किसको दे दिया है? पंड्या ब्रदर्स को दे दिया है. इसके लिए ये बिल रिसीवेबल गोज आउट. हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ऑन दी मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब हमको सामने वाली पार्टी से पैसा मिलेगा नहीं. ओके, सो यहां पे क्या होगा? नो एंट्री. किससे पैसा नहीं मिलेगा? शीतल ट्रेडर्स से पैसा नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो बिल रिसीवेबल किसके पास चला गया है? पंड्या के पास चला गया है. तो शीतल अभी किसको पे करेगी? पंड्या ब्रदर्स को. फाइन, इज दिस क्लियर? नाउ इन द बुक्स ऑफ शीतल ट्रेडर्स, ये कौन है शीतल ट्रेडर्स? ड्रॉई है. जिस दिन नूपुर ने पंड्या को बिल रिसीवेबल दिया उस दिन यहां पे इसको कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज दिस इज द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन बिटवीन नूपुर एंड पंड्या. इसके लिए शीतल को कोई भी अफेक्ट होगा नहीं. मैच्योरिटी डेट पे बिल्स रिसीवेबल जो आज दिन तक का उसका लायबिलिटी था वो अभी नहीं है, नो मोर लायबिलिटी. इसके लिए उसको रिवर्स इफेक्ट कर रहे हैं. बिल्स पेएबल किया है और कैश बैंक से गोज आउट, या बैंक इज द गिवर. So now let us start up with its practical question. Question 3 on page number 104. Palak sold goods of 48,000 on credit to Ansh on 15/5/16. पलक ने अंश को क्रेडिट पे 48,000 के गुड्स बेचे हैं 15/5 को. On the same day, that is on 15/5, Palak drew a bill on Ansh for 60 days. Now, this is the question which is based on days, which Ansh accepted. On 25/5, that is 25th May 16, Palak endorsed this bill in favor on a creditor Jinal. Palak ने वो बिल रिसीवेबल अपने क्रेडिटर जीनल को हैंडओवर कर दिया है. The amount of the bill was paid on the maturity date. 60 डेज के बाद जब मैच्योरिटी पीरियड आया तब अंश ने वो अमाउंट क्लियर कर दिया है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पलक एंड अंश. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पलक फर्स्ट. हु इज द ड्रॉवर? ये कौन है? ड्रॉवर है. नाउ ऑन 15/5/16 पलक ने अंश को गुड्स बेचे हैं. सो अंश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने के बेचे हैं? 48,000. ओके, क्रेडिट पे एंट्री हो रही है. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द पर्सन इज रिटन. नरेशन आएगा इसमें. डोंट फॉरगेट बीइंग गुड्स सोल्ड टू अंश. नेक्स्ट इज ऑन द वेरी सेम डे पलक ने बिल बनाया है. पलक ने गुड्स बेचे हैं. इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है. किसके लिए? पलक के लिए. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अंश account 48,000. Now these entries are very common and used to you people are, just because we are doing the same entries from last two questions. Fine. Now on 25th May पलक ने बिल रिसीवेबल उसके खुद के क्रेडिटर जीनल को दे दिया है. सो जो जीनल आज दिन तक पलक के लिए क्रेडिटर थी, यानी क्रेडिटर होना मींस क्रेडिट इफेक्ट होना,
अब तक पलक ने अपने बुक्स में जीनल को एज अ क्रेडिटर माना था। आज 25 मई को पलक जो है वो जीनल को पैसा दे रही है। इसके लिए पलक के लिए जीनल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज नो मोर क्रेडिटर। जीनल के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जीनल्स अकाउंट डेबिट टू क्या दिया है पलक ने? बिल्स रिसीवेबल दिया है। बिल्स रिसीवेबल गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 48,000. Is this clear? Now first of all, two parties are in relation, that is पलक and अंश। पलक ने क्या किया है? सोल्ड ऑन क्रेडिट, और अंश ने क्या किया है? परचेज्ड ऑन क्रेडिट। पलक के लिए बिल्स रिसीवेबल है, अंश के लिए बिल्स पेएबल है। फाइन। नाउ अंश पलक को पैसा देगा। अंश क्या करेगा? एज एंड व्हेन जब मैच्योरिटी डेट आएगा तब वो पलक को पैसा देगा। नाउ पलक का एक अपना खुद का क्रेडिटर है एंड दैट क्रेडिटर इज जीनल। फाइन। पलक का ये जीनल क्रेडिटर कैसे है? जब पलक ने जीनल से क्रेडिट पे गुड्स लिए होंगे। पलक ने क्या किया होगा? उधार पे जीनल से गुड्स लिए होंगे। इसके लिए जीनल क्या करती है? पलक से पैसा मांगती है। फाइन। अब पलक ने क्या किया? इसका जो खुद का बिल रिसीवेबल था वो किसको दे दिया है? जीनल को दे दिया है। सो राइट नाउ हु इज होल्डिंग दैट बिल रिसीवेबल? जीनल इज होल्डिंग। सो अंश इंस्टेड ऑफ पेइंग टू पलक नाउ ही विल पे टू जीनल। फाइन। सो अंश को तो पैसा देना ही था। इंस्टेड ऑफ पलक नाउ इट इज बीइंग पेएबल टू जीनल। जीनल को पैसा मिलना ही था। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग फ्रॉम पलक इट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अंश। इसमें पलक अपने आप साइड में हो जाती है। फाइन। उसको ना अंश से पैसा मिला और ना इसको जीनल को पैसा देना पड़ा। पलक ने अपने क्रेडिटर जीनल को जब ये बिल ट्रांसफर किया है, दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट। फाइन। इसको अपन कहते हैं एंडोर्समेंट। सो लेट अस अगेन कम बैक टू जर्नल एंट्रीज। सो यहां पे जीनल क्या हो गई है? डेबिट, बिकॉज जीनल इज नाउ नो मोर क्रेडिटर फॉर पलक और बिल रिसीवेबल उससे चला गया है। नाउ इट इज द टाइम फॉर it's the time for calculation of 60 days right from the date from which the bill has been drawn. Let us again go through with the working. Now we will write over here month, that is June. जून से हमें, जून कौन सा है? 15 है। फाइन। जून में कितने दिन होते हैं? 30 days. On 15th we are drawing. Sorry, it's not June, it's May. We have drawn the bill on 15th May. Fine. It's mistake, it's not June, it's May. May को हमने क्या किया है? 15 मई को हमने बिल रिसीवेबल बनाया है। So, from May, how many days are left? 16 days. How? Because 31 days होते हैं, उसमें से 15 को हमने बनाया है। So 16 days are out of May. From June, June is the month of 30 days. Now the sum total is of 46. ये 16 और ये 30 मिलके कितना हुआ? 46. Now total days gray, that is term of bill is 60. 46 हो गए हैं। Now how many are left? 14 are left. So जुलाई में से कितने लेंगे हम? 14 लेंगे।
14th July will become the maturity date without grace days. प्लस इसमें 3 days अपन को क्या करने हैं, 3 days grace days. So full and final हमारा 17 July 2016 will become the maturity date. 16 दिन मई के, 30 दिन जून पूरा और 14 दिन जुलाई के. 14 दिन मीन्स 14th जुलाई हुआ. 14th जुलाई में 15, 16, 17 3 मोर ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो फाइनल डेट आ जाएगा हमारा 17th जुलाई. सो दिस वॉज एज पर द कैलकुलेशन ऑफ डेज. सो मैच्योरिटी डेट इज 17th जुलाई 2016. पलक को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज पलक ने तो बिल्स रिसीवेबल किसको दे दिया है, जीनल को. सो ऑन मैच्योरिटी डेट यहां पे हो जाएगा नो एंट्री. फाइन, इज दिस क्लियर? नाउ वी विल स्टडी इन द बुक्स ऑफ अंश. ड्रॉई के बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है. ड्रॉई ने क्या किया है, क्रेडिट पे परचेजेस किए हैं ऑन 15/5/16. किससे गुड्स लिए हैं उसने, पलक से लिए हैं. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू पलक्स अकाउंट 48,000. फाइन. अगेन ऑन द वेरी सेम डेट बिल बना है 15th मई को. फाइन. इसके लिए क्या हो जाएगा, अंश के लिए, ड्रॉई के लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा. फाइन. सो पलक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. करंट लायबिलिटी माना जाता है, उसको अंश को पे करना पड़ेगा. फाइन. नाउ ऑन 25th मई 2016 अंश के बुक्स में होगा नो एंट्री, बिकॉज अंश को फर्क पड़ेगा नहीं. ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकिंग प्लेस बिटवीन पलक एंड जीनल और पलक में ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिससे अंश को कोई भी फर्क पड़ता नहीं है. सो जिस दिन यहां पर पलक की बुक में 25th को एंट्री है, उसी में अंश के डेट में क्या होगा, नो एंट्री. अंश कौन सी डेट से मतलब रखता है, ओनली ऑन मैच्योरिटी 17/7/2016. ये डेट को मैच्योरिटी पीरियड आया और बिल्स पेएबल इसका यहां पे कैंसल होकर डेबिट हो जाएगा और इसने पैसा दे दिया है. सो वी कैन राइट बैंक और कैश अकाउंट 48,000. इज दिस क्लियर? सो अंश को सिर्फ फर्क पड़ता है कब, जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आता है. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट ऑन 17/7. 17/7 इज दी 60 days ग्रेस के साथ. फाइन. आई होप दिस इज क्लियर to you people. And now your today's homework is illustration number 4, which is as good as question number 3 of 104 page, which we have studied right now. Thank you students. Thank you for listening.